ایک مسلمان 10,000 کافروں کا برابر ہے اگر کس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. یہ ابھی جنگ لڑ رہے, ایک بھی دم کدھر ہے, دوسرے بھی دم کدھر ہے, لیکن ہمارے پاس جو اصلی مضبوط جو ہے نا وہ ایمان ہے, وہ ہمارے پاس ہے. جو اصلی رسید ہے, وہ اصلی چیز ہے, وہ ہمارے پاس ہے. نہ مشرک کے پاس ہے نہ کافر کے پاس ہے. مسلمان 100% وہ مسلمان بنے گا جس کے پاس خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ. ابھی اس کے بعد امام مہدی آنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی دجال کا مقابلہ ہونا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا نظام ہے. یہ ابھی دیکھ لو ہمارے یہ جو ہے نا پنجاب میں 8-10 سال ہو گئے, یہ لوگ کیا کرتا ہے, کسی کا یہ سوچ نہیں ہے. یہ ابھی کیا ہو رہا ہے, اسلام شرک اور کفر کا جو ہے نا جنگ ہو رہا ہے, کے بارے میں سوچنا چاہیے. لیکن یہ دیکھ لو اگر کسی مشرک یا کافر ہمارے مسلمان کی زمین پر قبضہ نہیں کر رہے. میڈیا کے اندر دکھایا جا رہا ہے حماس نے جو اسرائیل کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو وہاں پر ذبح کیا ہے, ان کو مارا ہے, قتل کیا ہے. ننگی عورت کے اوپر کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا ہے. ایسے یہ اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کی مذمت کرنی چاہیے ہمیں یا نہیں؟ ہم یہ دیکھنا چاہیے جو اس سے پہلا مسلمانوں کو بیت المقدس پر کتنا ظلم ہو رہا تھا. کسی نے یہ نہیں بولا انسانی حقوق کرنا. ابھی ہمارا مولانا صاحب نے بھی کہ یہ بیان دیا, ابھی انسانی حقوق اس کے ساتھ کرنا چاہیے. جے ہند دوستو, پاکستان کے لوگ آلموسٹ آپ کو جاہل ہی دیکھنے کو ملیں گے, اور کچھ مورخ ایسے بھی ہیں جو فلسطین کے ساتھ ان کا قدم سے قدم ملا کر اسرائیل کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں, فلسطین کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی جاہل کچھ ایسے ہیں جو کہ فلسطینی آرمی میں جا کے اسرائیل کا صفایا کرنا چاہتے ہیں. اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے گا, آپ کو اس جاہل کے بارے میں کافی کچھ سیکھنے سمجھنے کو ملے گا, کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے, کس طرح کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر. انسانی حقوق جب کشمیر میں ظلم ہو رہا تھا, وہ انسانی حقوق کس نے نہیں بولا. جب افغانستان میں ظلم ہو رہا تھا, کس نے انسانی حقوق کا نہیں پوچھا. جب ادھر ہمارے مسلمان بھائیوں کا جو ہو رہا تھا, کس نے انسانی حقوق نہیں بتا. نہ کسی کروز سے خوف کر رہے ہیں, نہ کسی ڈرون سے خوف کرنا, نہ کسی مشرک سے خوف کرنا. کس قسم کی دنیا سے نہیں ڈرنا, اسرائیل سے نہیں ڈرنا. واللہ العظیم ورب الکعبہ, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں ہے. اسرائیل ہے وہ کافر ہے, اور مسلمانوں پہ وہ ظلم و ستم کر رہے ہیں. اور جو حماس کے لوگ انہوں نے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے ان کو جوابی کارروائی کی. جو ہے نا حماس, وہ انہوں نے بیت المقدس کا دفاع کرنے کے لیے, یہودیوں سے چھڑوانے کے لیے اٹیک کیا تھا. نہ انہوں نے بچوں کو کچھ کہا, نہ عورتوں کو کچھ کہا. انہوں نے پہل کی ہے, یہ بات ضرور ہے, لیکن انہوں نے انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر حملہ کیا. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو شہید کر دیا, عورتوں کو شہید کر دیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو یہود و نصارہ کے جو ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہمیشہ رہے گی, اور ہمارا یہ مشن رہے گا کہ بیت المقدس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو. یہ ہمارے لیے ایک بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ 57 ملک مسلمانوں کے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. ہمیں چاہیے ایز اے مسلم, ہمیں ان کی سپورٹ کرنی چاہیے, ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آخری تیسرا جنگ عظیم ہے, یہ آج یہ نہ کسی قید کا لڑائی ہے, نہ کسی کا جو ہے نا یہ اسلام اور کفر کا ہے. اگر ہم اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نے لازمی جانا پڑے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے, اگر مشرق میں کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو مغرب والا نے اس کو مدد کرنا ہے. اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں فرماتا ہے, وَقَاتِلُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس تک لڑو جب تک یہ فتنے اور شرک ختم نہیں ہو جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ فتح اسلام کی ہے. اور یہ تیسرا جو ہے نا جنگ عظیم ہے, یہ اسلام اور کفر کا ہے. یہ ہر مسلمان کے اوپر امتحان ہے. ہر مسلمان ہمارے اوپر جو ہے نا یہ فرض ہے, ہم اس کو دفاع کرنا, مسلمان کو بچانے کے لیے. مسلمان کے اوپر باجوڑ سے تعلق ہے. باجوڑ کے لوگ تو ہمیشہ سے ہی جنگ کے اندر ہی رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ افغانستان کی جنگ کے اندر وہ ہوں یا جو بھی مسئلہ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی, جیسے کہ امریکہ کے پاس ایک ٹیکنالوجی تھی, آپ اس کے خلاف بھی لڑے ہیں یہاں پر. تو اسرائیل کے پاس بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے, لیکن حماس کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. صرف آپ جیسے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جذبہ ہے, تو حماس کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اندر جذبہ. کیا ایک جذبہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو شکست دے سکتا ہے؟ اس کے لیے تو ہمارا سامنے مثال پڑے ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ بدر میں کیا ہوا, اور خالد رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, ایک مسلمان 10,000 کافروں کا برابر ہے اگر کس کے دل میں ایمان ہوتا ہے. 100% ایمان ہونا چاہیے, جس کے اللہ عز و جل حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. یہ ٹیکنالوجی, ہر چیز اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ ہر چیز کام چھوڑے گا. یہ ابھی جنگ لڑ رہے, ایک بھی دم کدھر ہے, دوسرے بھی دم کدھر ہے, لیکن ہمارے پاس جو اصلی
मजबूत जो है ना वो ईमान है, वो हमारे पास है। जो असली रसीद है, वो असली चीज़ है, वो हमारे पास है। न मुशरिक के पास है, न काफिर के पास है। मुसलमान 100% वो मुसलमान बनेगा जिसके पास खौफ नहीं होगा। वो मुसलमान है जिसको खौफ नहीं है। जो खौफ जिसका होता है, देख लो मोमिन में खौफ नहीं होता। हम अभी मेरा जो है ना अपना दिल जो करता है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा ये रिक्वेस्ट है, अगर मैं कोई फ़लस्तीन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं एक कमज़ोर बंदा हूँ, अभी मैं कोई जो है ना मुझे कोई वीज़ा बना के जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयार आप जंग लड़ने के लिए जाएंगे उधर? अल्लाह ताला इस्लाम के लिए हमारा बच्चे कुर्बान है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसको इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके इतना मोहब्बत नहीं हुआ जितना मेरे साथ इतना मोहब्बत नहीं करेगा जितना अपने जान अपने बच्चों के साथ, वो मोमिन नहीं बन सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार है, अभी भी तैयार है। और अच्छा, ये बताएं कि बच्चे भी तैयार करेगा इंशाल्लाह, आने वाला नस्ल भी तैयार करेगा। और इस इंशाल्लाह अभी इसके बाद इमाम मेहदी आने वाला है इंशाल्लाह ताला। अभी दज्जाल का मुकाबला होना है, ईसा अलैहिस्सलाम का आने का निज़ाम है। ये अभी देख लो हमारे ये जो है ना पंजाब में 8-10 साल हो गए, ये लोग क्या करते हैं, किसी का ये सोच नहीं है। ये अभी क्या हो रहा है, इस्लाम शिरक और कुफर का जो है ना जंग हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लेकिन भाई आप बात कर रहे हैं कि फ़लस्तीन के लोगों की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर वहाँ पर किसी मुसलमान के साथ बुरा हो रहा है तो आप उसका साथ दो। लेकिन यहाँ पर आप देखें हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, लोग भूखे मर रहे हैं। हम यहाँ पर जो हमारा हमसाया है उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो भूखा है, वो जिंदा है, वो मर गया है। इतनी हमारे अंदर नफ्सा नफसी है, इतना हम खुद गर्ज हो गए हैं। हम अपने हमसाये का नहीं पूछते तो हम तीसरी जगह पर जाकर एक मुसलमान वहाँ पर है उसका हमें बहुत ख्याल है। तो हमें पहले अपने मुल्क के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? उनके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये देख लो अगर किसी मुशरिक या काफिर हमारे मुसलमान की ज़मीन पर कब्जा नहीं करेगा, हमारा दीन को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए, तो उसको हम अपने माँ बाप से पूछ के जाना पड़ेगा जिहाद करने के लिए, इस्लाम लड़ने के लिए, काफिरों जिहाद के लिए। लेकिन अभी जो है ना सर, अभी जो है ना अभी हमारा इस्लाम पर हमला हो गया, हमारा जो है ना अल्लाह के घर पर हमला हो गया। अभी ना हमने अपने बच्चों से पूछने, ना अपने माँ से पूछने, हम अभी जो है ना किसी से नहीं पूछने। अभी बच्चे भी देख लो, असहाब इकराम का तारीख देखना चाहिए। अपने बच्चे भूख से उसका शहीद हो गया। और ये अगर हम ये कारोबार नहीं छोड़ सकते हैं तो हम अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ सकता है। तो ये बहुत इतना आसानी से जन्नत नहीं मिलता, न इतना आसानी से जंग लड़ सकता है। ये हर चीज़ बर्दाश्त करना पड़ेगी, हर चीज़ बर्दाश्त करना चाहिए। और हमारे अपने मुल्क और अपने पाकिस्तान से कोई जमात कर रही है इस तरीके से, यहाँ से कारकुन इकट्ठे कर रही है वहाँ पर जंग लड़ने के लिए, कोई हो रहा है काम या नहीं हो रहा? अभी देख लो यहूद और नसवारा, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया हमारा दोस्त नहीं बन सकता। अमेरिका वहाँ पर पहुँच गया ना, अमेरिका बेड़े लेके पहुँच गया, इंडिया भी उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच गया। यानी वो सारे कह रहे कि हम उसके साथ हैं, यूरोप उसके मदद के लिए पहुँच गया। तो मुसलमान किधर खड़े हैं? मुसलमान तो कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं गया। मैंने तो आपको पहले बताया सर, ये देख लो अल्लाह के नबी ने फरमाया आप लोग जलील हो जाएंगे जब तक तुमने इस्लाम के लिए जंग शुरू किया और जिहाद शुरू किया, तब अल्लाह ताला इज्जत दे देगा। अभी हम जलील है, जब तक हमने इस्लाम के लिए कुर्बानी दिया और हम सब मुल्क तैयार हो गया। देख लो मुशरिक और काफिर यहूद और नसवारा सारे इकट्ठे हो गया, सरेआम ऐलान किया, और हमारा मीडिया भी खामोश है, हम सब खामोश है, हम इसके लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान के अंदर किस तरह का एक जाहिल है जो कि फलस्तीन जाएगा, फिलिस्तीन नहीं फलस्तीन जाएगा ताकि वो फलस्तीन जाकर लड़ सके इजराइल के साथ। दोस्तों पाकिस्तान में अगर जाहिलों की बात करें तो बहुत जाहिल हैं, बहुत ही मूर्ख हैं, महामूर्ख लोग हैं। ऐसे में जब अपने देश की बात आती है तो वहां पे वो जज्बे की बात करते हैं। जज्बा बहुत है, टैलेंट बहुत है। कहाँ है भैया टैलेंट, दिखाओ तो सही। क्या आपने कोई चंद्रयान या फिर सोलर मिशन लॉन्च किया, किसी भी तरीके का कोई मिशन लॉन्च किया? आप कौन सी दिशा में कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी आपने एक्वायर की जिसके बिहा पे आप बोल सके कि आपने जज्बे से किया है? कई ऐसे जाहिल देखने को मिल जाएंगे कि हम कलमे की ताकत से पूरी दुनिया पे फतह कर सकते हैं। अभी पाकिस्तान में जो खास तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि फलस्तीन जिंदाबाद के नारे और इजराइल मुर्दाबाद के नारे। वहीं पाकिस्तान की खुद की हालत इतनी पतली है कि पठान वहां से बजा रहे हैं। केपीके के अंदर पठानों ने लगातार इनके सैनिकों के सर काट के फुटबॉल खेले हैं। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा, टीटीपी ने जब बॉर्डर पे अटैक किया केपीके के, तो वहां पे पाकिस्तानी फौजी अपनी दुम दबाकर भाग रहा है। तो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के। और वहीं पे
अपने देश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पे ध्यान नहीं देंगे, फलस्तीन जाएंगे, ये जाहिल गंवार जाएंगे फलस्तीन। अपने देश के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जैसे बलूचिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट हैं, बलूचिस्तान आर्मी बन चुकी है और बलूचिस्तान के बाद पीओके के अंदर लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं, वहां पे आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया है। सिंध के लिए तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया कि भैया सिंध हमारा है, और इसके अलावा गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर कुछ न कुछ लगा ही रहता है। तो अपने देश के अंदर इतनी इंस्टेबिलिटी है, फिर भी वो फलस्तीन का साथ देंगे। अब इन जाहिलों को कौन समझाए, ये सारा किया धरा इनके सियासतदानों का ही है। इनके जो बुकलेट है इसमें यही पढ़ाया गया है इनकी हिस्ट्री के अंदर कि हमने 4 जंगें जीती हैं। अभी तक पाकिस्तान कोई भी जंग जीता नहीं है, फिर भी इतने सारे इनके आर्मी ऑफिसर तमगे लगा के घूमते हैं कि बहुत सारे जंग जीते हैं, बहुत सारे मेडल इन्होंने जीते हैं। किस बात के मेडल जीते हैं? पाकिस्तान में जो कुछ भी अपने बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पूरी तरीके से झूठ पढ़ाया जा रहा है। और जहां तक बात आती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे compete करने का, तो ये कहीं पर भी compete नहीं कर पा रहे। हाँ, एक जगह जरूर है, ये सबसे टॉप पे आते हैं, वो है भीख मांगने में। जितना बड़ा कटोरा इनके पास है, इतना बड़ा कटोरा तो किसी ने बनाया तक नहीं आज तक। अभी काकड़ साहब गए हैं आपके चाइना, वहां पे वो भीख ही मांग रहे होंगे। इससे पहले फ्रांस में मजे करके आए, हनीमून मना के आए हैं। और देश के सियासतदान यही कर रहे हैं, पैसा लूट रहे हैं, दूसरे देशों में पैसा सप्लाई किए जा रहे हैं, दूसरे देशों में अपने लिए प्रॉपर्टीज जोड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी आवाम को बिल्कुल नंगा किए जा रहे हैं। आवाम के ये हाल है कि रोटी खरीदने को, घर के गुजर बसर करने तक को पैसा नहीं है। और आज की जो न्यूज है, भारत ने फिर ठोक दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान 191 रन पे आउट हो गया, ऑल आउट। बहुत बहुत बधाइयां आप सभी को। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा, इस जाहिल ने काफी एंटरटेनमेंट आपका किया। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।